Good morning, everybody. I am Professor Muhammad Wasim Akram. Welcome to all of you in my video lecture series. I have been teaching this course for the last 12 years. These video lectures will be very useful to the students of civil engineering. So keep watching, like, comment, share, and subscribe our channel. Thank you. Good morning, students. In the last class, we learned about classification of soil, and that is, soil is classified basically coarse grained soil and fine grained soil. And we have also discussed about the different classification systems like unified soil classification system. We discussed the detail of the unified soil classification system. In this class, we will learn about AASHTO soil classification system. AASHTO stands for American Association of State Highway and Transport Official. The US Bureau of Public Road, now the Federal Highway Administration, developed in the late 20s a classification system called the Public Road Administration Classification System, which was specifically meant for use in road construction. The original system has been revised several times. The present AASHTO, that is 1978. This system is based on both the particle size and plasticity characteristics. The soils are classified into 8 groups, A1 through A7, with additional group A8 for peat and muck. The soil within each group are evaluated according to group index, GI. In short, we call group index. Very important term. We will learn how to calculate the group index in this lecture. The group index GI is calculated by an empirical formula, that is GI is equal to 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 BD. Here we have to understand the term A, B, C and D. A means that part of the person passing the 75 micron sieve greater than 35 and not exceeding 75, expressed as a positive whole number. Range is 1 to 40, means A का जो रेंज होगा 1 to 40 होगा. सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए आपको दो चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए. पहला तो ग्रेन साइज एनालिसिस पहले से किया हुआ हो, और दूसरा उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, या आई मीन कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट उसका पहले से पता हो. तभी हम ये कैलकुलेशन जो है ग्रुप इंडेक्स का हम कर पाएंगे. आइए, तो हम ये कह रहे थे कि ए क्या है, जिसकी वैल्यू 1 to 40 होगी. Now B, that part of the person passing the 75 micron sieve greater than 15 and not exceeding 55, expressed as a positive whole number, ranges 1 to 40. मीन्स A का जो वैल्यू होगा वो भी 1 से 40 के बीच में होना चाहिए, और B का भी जो वैल्यू होगा 1 to 40 के बीच में ही होना चाहिए. C is that part of liquid limit greater than 40 and not greater than 60. ये liquid limit का है 40 and 60, expressed as a positive whole number, ranges 1 to 20. मतलब C का जो वैल्यू हो 1 से 20 के बीच में होगा. D is that part of plasticity index greater than 10 and not exceeding 30. Greater than 10 but not exceeding 30, expressed as a positive whole number, ranges 1 to 20. D की भी जो वैल्यू होगी 1 से 20 के बीच होना चाहिए. तो ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस ग्रुप इंडेक्स निकालने के लिए आपको A, B, C, D पहले निकालना होगा.
क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमें लगाना है। ए की जो वैल्यू होगी वो 1 to 40 के बीच में होगा, बी की वैल्यू 1 to 40 के बीच में, सी की वैल्यू 1 to 20 के बीच में एंड डी की वैल्यू 1 to 20 के बीच में होना चाहिए। अगर हम ए बी सी डी कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो जस्ट फॉर्मूला में जी आई इज इक्वल टू 0.2a प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.01 बी डी में रख करके हम इसको ग्रुप इंडेक्स निकाल सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ग्रुप इंडेक्स वी मस्ट रिमेंबर, जिसका हमें काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा कि वाइल कैलकुलेटिंग ग्रुप इंडेक्स इफ़ एनी टर्म बिकम निगेटिव इट इज़ ड्रॉप्ड। कोई भी जो 3 टर्म है हमारा ग्रुप इंडेक्स में, कोई भी टर्म अगर उसका निगेटिव आ रहा तो वो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, मतलब 0 मानेंगे। सेकेंड पॉइंट इज द ग्रुप इंडेक्स शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, है ना। अगर सपोज 6.2 आया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप इंडेक्स 6 होगा, क्योंकि ग्रुप इंडेक्स हमेशा होल नंबर में ही होगा, उसको हम नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे। थर्ड पॉइंट वी मस्ट रिमेंबर, इफ द कंप्यूटेड वैल्यू इज निगेटिव इट इज रिपोर्टेड एट 0। अगर पूरा ग्रुप इंडेक्स ही हमारा क्या हो, निगेटिव में आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 रिपोर्ट करेंगे कि ग्रुप इंडेक्स हमारा 0 आया है। एक चीज़ और बात ध्यान में रखने वाली है, इन जनरल द ग्रेटर द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू द लेस डिजायरेबल ए सॉइल इज फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन विद इन दैट सब ग्रुप। मतलब ग्रुप इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो हाईली अनडिजायरेबल मटेरियल होगा फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कम वैल्यू है ग्रुप इंडेक्स का वो अच्छा मटेरियल होता है। A group index of 0 indicates a good subgrade material, while a group index of 20 or more indicates a very poor subgrade material. 0 जो हो सबसे बेस्ट एंड 20 एंड एबव जो है उसको एकदम वर्स्ट सबग्रेड मटेरियल माना जाता है, मतलब अवॉइड ही करना बेहतर होगा। अभी हमने देखा कि ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा ये है 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। इस ग्रुप इंडेक्स को निकालने के लिए हमें ए बी सी डी पता होना चाहिए। ये थ्योरेटिकली हमने देखा, कुछ बातें क्लियर नहीं हुई, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे ग्रुप इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी, बी की, सी की, डी की क्या वैल्यू होगी। तो आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट ग्रुप इंडेक्स। क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन टेस्ट on a sample of soil from a project site reveals that 60% of the soil passes US sieve number 200 means 75 micron sieve, अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो। The liquid limit of the soil is 38% and the plastic limit is 25%. Calculate the group index of the soil and classify the soil as per ASTO system, दैट इज़ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि वी हैव ऑलरेडी सीव एनालिसिस डेटा कि 75 माइक्रोन से 60% पास कर रहा है। एंड अनदर डेटा इज वी हैव लिक्विड लिमिट एज 38% एंड प्लास्टिक लिमिट एज 25%. फर्स्ट ऑफ ऑल, and plastic limit, we will calculate plasticity index and that is equal to liquid limit minus plastic limit, that is 38 minus 25. तो पहला काम हमारा हो गया कि हमने क्या निकाल लिया, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दैट इज 13। अब समझना है हमें ए बी सी एंड डी के बारे में। ए क्या था, ए इज that part of the person passing the 75 micron sieve greater than 35 and not exceeding 75 expressed as a positive whole number. इसका ये मतलब हुआ कि A 35 से तो कम नहीं होना चाहिए और 75 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ हमारा क्या है, A जो है वो 60% है। इट मीन्स A विल बी 60 माइनस 35, जो लोअर लिमिट हमारा
दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ पे एक बात और समझाते चलो कि अगर सपोज परसेंट पासिंग 75 माइक्रोन सीव होता 75, तो इट विल बी 75 माइनस 35 दैट इज 40। अगर सपोज ये होता 80%, तो 80% के केस में भी हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम 75 माइनस 35 दैट इज 40। क्यों? इट शुड नॉट एक्सीड 75 एंड और ये 35 से कम भी नहीं होना चाहिए, और ये हमारा जो रेंज हो 1 to 40 के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इससे हमने a निकाल लिया दैट इज 60 माइनस 35, तो a हमारा आ गया 25। अब b निकालते हैं। क्या b बोलता है, दैट पाथ ऑफ द पर्सन पासिंग 75 माइक्रोन सीव ग्रेटर देन 15 एंड नॉट एक्सीडिंग 55 एक्सप्रेस एज ए पॉजिटिव होल नंबर रेंज 1 to 40। b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15 से कम नहीं होनी चाहिए और 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स इसकी वैल्यू हो 15 एंड 55 के बीच होनी चाहिए। बट हमारा क्या है, 60 है, परसेंट पासिंग 75 माइक्रोन से इज 60, तो हम क्या उसको लेंगे, मैक्सिमम 55 ही लेंगे। तो 55 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 40। अभी हमने जो जैसा ऊपर में बताया, सपोज ये 80 होता तब भी हम यहाँ पे क्या लेते, 75 माइनस 35, तब भी बी के केस में हम क्या लेते हैं, 55 माइनस 15 दैट इज 40। आई होप कि बी कैसे निकल रहा है वो समझ में आ गया होगा। आइए अब सी के बारे में समझते हैं। सी इज दैट पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट ग्रेटर दैन 40 एंड नॉट ग्रेटर दैन 60। मतलब क्या हुआ कि ये सी जो होगा वो लिक्विड लिमिट वाला पार्ट है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 60 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और इसका रेंज जो हो 1 to 20 के बीच में होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि वी हैव लिक्विड लिमिट 38 जो विद इन रेंज है, मीन्स क्या है, 60 से ज़्यादा नहीं है और क्या है, लेकिन 40 से कम है। तो अगर हम C निकालेंगे तो 38 माइनस 40, C इज -2, चूँकि ये 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो C की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव आ गई। इसी तरह अगर हम D देखें, क्या है, दैट पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, D है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स का पार्ट, ग्रेटर देन 10, 10 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एंड नॉट एक्सीडिंग 30, बट 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड एज ए पॉजिटिव होल नंबर 1 to 20। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है, 13, तो क्या है ये 10 से तो बड़ा है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा कितना है, 13 है, तो D विल बी 13 माइनस 10 दैट इज 3। Now we have the value of A 25, B 40, C -2, D 3. So put the value of A, B, C, D in this empirical formula. Gi is equal to 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 BD. So 0.2A means 25 plus 0.005 A means 25, and C is -2 means it will be approximately 0, because हमने क्या देखा कि अगर कोई निगेटिव आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, सो दिस विल बिकम 0। 0.01 B मीन्स 40, D मीन्स 3, सो कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है 6.2, एंड दिस ग्रुप इंडेक्स मस्ट बी राउंडेड अप टू द नियरेस्ट होल नंबर, सो ग्रुप इंडेक्स इज 6। तो हमारा पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का कि कैलकुलेट द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल, सो तो ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज 6। नाउ वी विल क्लासिफाई द सॉइल एज पर एस्ट्रो बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल। क्लासिफाई करने के लिए
एस्ट्रो ने एक टेबल प्रिपेयर किया है, उसको हमें समझना है, उसके हिसाब से हम अपना जो डेटा अवेलेबल है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी हमने देखा क्या कि हमारा जो है परसेंट पासिंग 75 माइक्रोन सीव इज 60%। हेयर देखिए जनरल क्लासिफिकेशन में पहला क्या है कि ग्रेनुलर मटेरियल 35% और लेस पासिंग 75 माइक्रोन एंड सिल्टी क्ले मटेरियल मोर देन 35% पासिंग 75 माइक्रोन। मीन्स सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि बेस्ड ऑन जनरल क्लासिफिकेशन या अवेलेबल डेटा हमें ये देखना है कि 75 माइक्रोन सीव से हमारा कम जो है कितना परसेंट हो रहा है, पास हो रहा है, और ये समझना है। तो हम हमारे डेटा के हिसाब से कितना है 60%। तो यहाँ जो है 35 मोर देन 35। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो सॉइल है A1, A3 और A2 तो नहीं होगा, सॉइल आइदर A4, A5, A6 या A7 होगा, इस ग्रुप में होगा। तो सबसे पहली जो बात ये हो गई कि 75 माइक्रोन सीव से कितना परसेंट पास कर रहा है, उसके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया कि A1 नहीं है, A3 नहीं है, A2 भी नहीं है, ये तीन ग्रुप में नहीं है। क्यों? इसके लिए A4 में हो सकता है, A5 में हो सकता है, A6 में हो सकता है या A7 में हो सकता है। तो पहले डेटा से हमने ये क्रॉस कर दिया। अब इसमें हमको देखना ही नहीं, अब हमें इन चारों ग्रुप में देखना है। सेकेंड जो हमें देखना है वो लिक्विड लिमिट। पहला हमने देखा ग्रेन साइज का, दूसरा हमको देखना है लिक्विड लिमिट। A1, A3, A2 तो पहले ही आउट हो गया, तो अब हमें जो लिक्विड लिमिट का डेटा देखना है वो A4, A5, A6 एंड A7 में ही सिर्फ देखना है। अब यहाँ देखिए है लिक्विड लिमिट, ये जो है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट वाले लाइन में आप आ जाइए, यहाँ पे इस तरह से आप एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, देखने में आसानी होगी। तो अभी इधर पार्ट तो हमको देखना ही नहीं है, देखना है A4, A3, A5, A6, A7 में। तो एज पर डेटा अवेलेबल लिक्विड लिमिट इज 38%। हमारा जो है कितना है लिक्विड लिमिट 38%। अब यहाँ देखना है क्या 40 मैक्स, इसका मतलब कि ये हो सकता है, हमारा 38 है, इसमें 41 मिनिमम, ये नहीं होगा। क्यों? हमारा 38 है लेकिन यहाँ 41 मिनिमम से इसका मतलब क्या हुआ A5 नहीं होगा, ये इसको क्रॉस कर देंगे। 40 मैक्स मीन्स A6 हो सकता है। क्यों? 38 हमारा है और 40 मैक्सिमम। 41 मिनिमम ये भी नहीं होगा, मीन्स अब और क्या हो गया A5 और A7 भी क्रॉस हो गया। अब A5 और A7 में भी हमारा सॉइल नहीं है। नेक्स्ट डेटा जो देखेंगे हम वो देखेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये वाली लाइन में हम देखेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने A1, A3, A2, A5 और A7 को क्रॉस कर दिया है। अब हमें सिर्फ देखना है A4 एंड A6 में, सिर्फ A4 और A6। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा कितना था 13, हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 13। हेयर इन A4 10 मैक्स, अब देखिए तो मैक्सिमम 10 ही होना चाहिए, लेकिन हमारा है 13, इसका मतलब क्या हुआ ये भी क्रॉस हो गया। और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि A4 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ A6 में ऑल्दो यहाँ भी क्या है हमारा 11 मैक्स, जो 13 के काफ़ी क्लोज है इंस्टेड ऑफ 10। सो दिस A6 विल बी द राइट ग्रुप फॉर दिस सॉइल। तो हमारा सॉइल जो हुआ किसमें है A6 में हमारा ग्रुप किया जाएगा एज पर डिटेल अवेलेबल। फाइनली सॉइल को हम क्लासिफाई इस तरीके से करेंगे A66 मीन्स सॉइल जो हमारा होगा A6 में होगा, एंड ये ब्रैकेट में जो है हमारा ये है ग्रुप इंडेक्स। सो एज पर एस्ट्रो सॉइल क्लासिफिकेशन the soil is A66 means it falls in group 6 and group index is also 6.
इस तरीके से हम S2 को क्लासिफाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट मेथड है, तो हर स्टूडेंट को इसको समझना चाहिए। और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें सिर्फ और समझने वाली बात क्या है, ABCD अगर आपको निकालना आ गया तो आप आसानी से ग्रुप इंडेक्स निकाल लेंगे। और दो चीज़ें आपको तो एडवांस में पता होनी ही चाहिए। पहली चीज़ तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स परसेंट पासिंग 75 माइक्रोन सीप, एंड अनदर थिंग इज लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इस तरीके से हम एस्ट्रो से सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।